Hello, everyone. Welcome to another episode of Beyond the Stage, the Mega Student Teacher Award Journey. जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की जर्नी शेयर करते हैं और ये सिर्फ एक सिंगल पार्टिसिपेंट की जर्नी नहीं होती है, ये सिर्फ उनके अकेले की कहानी नहीं होती है। ये कहानी जुड़ी होती है उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ, उनके कलीग्स के साथ। तो हम यहाँ पे उनके चैलेंजेस को, उनकी ट्रेजेडीज को, उनकी स्टेज के पीछे की कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज एन ऑडियंस हम तो उनका स्माइलिंग फेस देखते हैं, बट वो स्माइलिंग फेस के पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी सारी परेशानी होती है, वो हमें नहीं पता है। सो ऐसे जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं आज हमारे साथ श्रेया बेहरा, जो ना सिर्फ सीजन 3 की विनर रह चुकी है, बट सीजन 2 की सेकंड रनर अप भी रह चुकी है। सो आई वेलकम श्रेया बेहरा एंड हर पेरेंट्स ओवर हियर। थैंक यू। सो श्रेया, हमें पता है कि आप रॉयल यूनिवर्सिटी से हैं और आपने जब पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम सीजन 2 में मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड में, तो यू हैड जस्ट स्टेप्ड इनटू योर कॉलेज लाइफ। आपका फर्स्ट ईयर था, फ्रेशर थे, और आपको आपके प्रोफेसर ने एक रैंडम नोटिस भेजा कि ऐसा कोई कंपटीशन है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। सो हाउ डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट? तो जब नोटिस आया तो मैंने तो स्टार्टिंग में उसे इग्नोर कर दिया। मैंने बोला है कोई नोटिस। देन मैम का कॉल आया कि एक अर्जेंट है, मिलो मुझसे आके। मैंने बोला ठीक है, मैम बुला रहे हैं तो मिलना पड़ेगा। देन मैम ने बोला कि मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड सीजन 2.0 इज कमिंग, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट। मैंने बोला मैम सॉरी, बट रिसेंटली आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉलेज, so I would not be able to participate in that, but somehow my professor convinced me that opportunity is knocking at your door, so why to miss that? So thinking about that, I also told yes, I will give it a chance. So this is how I participated in Mega Student Teacher season 2.0. So Shreya, that is amazing that you participated unknowingly, because I believe शायद आपको इसके बारे में पता भी नहीं था, right? What is the competition all about, और कौन organizing team है? Can you tell something else about that? Actually, I never heard about Mega Student Teacher Award 2.0, or it was the first time when I came to know that there is some organizing team called Mega Student Teacher Award 2.0, and I didn't knew that platform is so big and vast. I thought it was a random competition that I have to participate and do registration and all. So that was the reason I told no, because I didn't knew how worthy it was. Right. Amazing. So Shreya, can you tell me that आपने जब participate किया, वीडियो शूट करके भेजा, and then finally आप second round के लिए select हो गए, so how did you feel about that? So recording a video was a bit challenging because I didn't got enough time. It was like evening, ma'am has informed me, and next day I have to prep up, and being a fresher, it was a bit tough because I have to cope up with my new subjects also, and I have to manage this also. So yeah, with practicing I did record my video, but I want to tell that it was not in the first shot, it was in second go. So I recorded somehow and managed to submit it online, and I was selected through an online audition. So I was quite happy that at least I cleared a first round. Right. That's amazing. So आप मुझे ये बताइए कि आपने जस्ट स्कूल से पास आउट किया था, राइट? तो एज अ स्कूल स्टूडेंट ऐसे कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, या फिर दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू हैड पार्टिसिपेटेड? When I was in school, I used to participate in elocution and declamation, debate. I did all of this stuff, but MSTA was something different for me, because it was the first time when I was supposed to use PPT. I had an idea how to use that, but I didn't know that I had to use this in finale stage. So it was a different part for me.
I also remember that you told that you were not very much used to with using technologies, and you didn't know how to make PPTs. So that was a challenge for you, right? So how did you cope up with that? Yes, that was a challenge because when I participated in Mega Student Teacher Season 2.0, at that time I didn't have had my own PC or laptop, so making presentation was a bit difficult. And in college, I also didn't knew someone who could help me out, so I asked my father to help me out. He has his own laptop, but as it was provided by company, so it was IT secured, so it was difficult for me to manage, but somehow with God's grace I have managed and submitted my PPT. राइट सो मम्मा और पापा ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की है पीपीटी सबमिट करने में फाइनली. सो एज अ पेरेंट सर, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा स्टेज लेवल 1 के बाद जब श्रेया को पता चला कि इतने बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म करने वाली है, तो एज अ पेरेंट आपको कैसा फील हुआ? हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि पहली बार हम श्रेया को देखने वाले थे, मतलब लाइव परफॉर्मेंस साथ में पीपीटी के साथ. और वो मतलब घर पे भी हम उसके साथ जब प्रैक्टिस कर रहे थे तभी तो बोल ही रही थी, लेकिन वो स्टेज पर कैसे बोलना है वो हमारे लिए मतलब बहुत टेंशन की चीज़ था, लेकिन फिर भी उसने अच्छा बोला. हमारे लिए मतलब वो प्राउड मोमेंट था. राइट राइट. एवरी पेरेंट थिंक्स कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उनका बच्चा बेस्ट परफॉर्म करे, एंड ऑब्वियसली आपने भी वही महसूस किया होगा. बट एक कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना दिल में धक धक कि क्या होगा क्या होगा, क्या वो कर पाएगी, क्या वो रुक जाएगी, क्या वो नर्वस हो जाएगी. तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? उसके लिए सच बताए, मैं तो कंपनी के काम में इतना बिजी रहता था, 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कंपनी से मेरे को आने में टाइम निकल जाता. वो मैं जो जहाँ तक पहुँच जाए वो मम्मी, उसका मम्मी के लिए. तो मम्मी हमेशा उसको खाना खाने के बाद रात को हम लोग जब सो जाते थे तो उस टाइम वो मम्मी के साथ प्रैक्टिस करती थी. तो फाइनली जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर मेरे साथ मतलब मेरे को जब टाइम मिला मैं भी 1-2 बार रिव्यू किया था, लेकिन मम्मी मैंने उसके साथ हमेशा रहती थी, कैसे बोलना है, कहाँ पर अटक रहा है, कुछ गलत है तो रिवीजन करना, वो मम्मी ही हमेशा उसके साथ ही रहती थी. राइट राइट. तो मैम आप बताइए, आपको कैसा लगा आपकी ही बेटी के साथ आप उसी के कंपटीशन में इक्विवेलेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, और साथ साथ में आप भी थोड़ा प्रिपेयर कर रहे होंगे कि इस तरीके से बोलना, कैसे डिलीवर करना. सो हाउ वाज योर जर्नी? श्रेया पहले तो स्कूल में परफॉर्मेंस की है, लेकिन जब श्रेया आके मुझे बोली कि मम्मी कॉलेज में भी वो होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, तो मैंने बोला ठीक है तू पार्ट ले ले, फिर देख क्या होता है आगे. सिलेक्ट हो गई तो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए. फिर मम्मी ने उसने वो मुझे बोला मम्मी मैं सिलेक्ट हो गई हूँ राउंड 1 में, मुझे राउंड 2 के लिए सिलेक्ट किया है मैं टीम की तरफ से. तो मैं बोली कि ठीक है चल हम तैयारी करते हैं उसके लिए. तो फिर वो अपने से वो लेके आई है रिहर्सल प्रैक्टिस करने के लिए. फिर रात भर वो अपना पढ़ाई करती थी, फिर रात में हम दोनों बैठ के बोलते थे मैं बोल तू सुना मुझे क्या बोलना है मुझे, मैं सुनूं तू सही बोल रही कि नहीं. तो 1 बार 2 बार करते 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 बोले इधर स्टॉप कर, बहुत फास्ट जा रही है, थोड़ा स्लो कर, एडजस्ट कर अपने आप ट्यून को, बहुत वॉल्यूम लाउड हो रहा है, वॉल्यूम बहुत लाउड हो रहा है, स्लो करो उसको. ऐसे करते करते फिर वो टाइम मैनेजमेंट हुआ हमारे से. फिर श्रेया बोली मम्मी अभी तो ठीक है ना, मैं बराबर कर रही हूँ ना. हाँ श्रेया तो अभी बराबर कर रही है, अभी देख अभी राउंड 2 के लिए सिलेक्ट होती कि नहीं वो देख ले. फिर वो जाके MSTA 2.0 में परफॉर्मेंस की. हाँ, इट इज सेड कि बेटियां मदर्स की बेस्ट फ्रेंड होती है, और आई वुड रादर से मदर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ डॉटर्स. और इसी तरह आई कैन से कि कैसे इन्होंने अपनी ये फ्रेंडशिप निभाई है, और बेस्ट टीचर्स भी कहलाते हैं. और इसी तरीके से मे बी आई गेस विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस जिस तरीके से आपने श्रेया को गाइड किया, दैट वाज रियली अप्रिशिएटिव. वी कैन सी कि जो कॉन्फिडेंस से इसने डिलीवर किया था फाइनल स्टेज पे, डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लाई है मैम. बट श्रेया एज अ पार्टिसिपेंट आप बताइए कि जब आप सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हो गई और आपको फाइनल राउंड पे, फाइनल स्टेज पे परफॉर्म करना था, सो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग वाज दैट कि
नर्वसनेस था, एंशियसनेस था या एक्साइटमेंट था? व्हाट वाज इट? So when I was selected for second round, first I couldn't believe that oh I got selected, but it was a dream come true. And we had a virtual meeting with Chintan sir where he told how you have to use your stage, where you have to take pauses. So I was very nervous because, as I told, running PPT was a bit difficult for me. But yeah, with nervousness I was excited because I know there was a huge crowd going to listen to me. So backstage also got an opportunity to meet different personalities, so it reduced my fear. राइट, राइट। सो ऐसा कोई पॉइंट था स्टेज पे जहाँ पे आप एकदम से लॉस्ट हो गए या फिर एकदम से आपका कंटेंट भूल गए हो? ऐसा कोई मोमेंट आपने महसूस किया? आई वॉज लॉस्ट क्योंकि जब मैंने अपना स्पीच डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैं अपना पीपीटी रन कर रही थी, पीपीटी रन ही नहीं हो रहा था एंड माई टाइम वॉज गोइंग ऑन। तो मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चल रही थी कि अब क्या होगा, अब तो गया सब हाथ से, कुछ नहीं होगा, टाइम भी गया, ये भी गया। एंड और एक मोमेंट था जब मेरा डेटा और मेरा ईयर मिसमैच हो गया था, तो वहाँ पे भी मेरे को जजेस ने पॉइंट आउट किया कि योर डेटा एंड योर ईयर इज मिसमैच। तो वो भी एक नर्वसनेस थी कि मतलब क्या हुआ, इतनी प्रैक्टिस की बट डेटा और ईयर मिसमैच हो गया, पता नहीं अब आगे क्या होगा। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? आपका वो नर्वसनेस, वो एंशियसनेस, वो आपने कैसे मैनेज किया? सो जब मुझे जज ने पॉइंट आउट किया कि दिस डेटा इज रॉन्ग और ईयर इज मिसमैच, सो आई एक्सेप्टेड इट विद अ ग्रेस बिकॉज आई रिमेंबर माई टीचर टोल्ड दैट ओइंग योर मिस्टेक इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड इट शोज योर कैरेक्टर। सो मैंने वहाँ से लर्न किया कि ज़रूरी नहीं है हम हमेशा आर्ग्यू करें या हमारे आइडियाज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं, बट अगर हम मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं तो भी हम जीत सकते हैं या फिर हम लाइफ में कुछ सीख सकते हैं। Right. So this was how. That's the spirit actually, because जीतना was not an important thing in this competition. Rather, participating, getting involved, and learning something out of it was the whole idea, Yes. right? So, do you think that you had learned something out of this competition? Yeah, I learned that the winning always doesn't matter, because when I was in school my only motto was I have to go on stage, I have to speak and win the title because I want to make my school proud. But participating in MSTA has changed my perspective completely, because I got to know that learning is the biggest thing. How much deep you look into the subject, you will get to learn more. So I learned from various participants. So learning was the biggest thing over winning. Right, true. And I believe आपने जो वर्कशॉप अटेंड किया था, that was also very helpful, जिसमें आपने presentations and body language में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी for the first time, right? How can you tell our audience how was it helpful for you? I think it's the only exclusive thing MSTA platform provides you, that is personality development workshop by Miss Lavanya Patel. And if I want to express, she is truly magical. Her words will make you feel the magic, because she knows how students feel when they go on stage and they feel quite nervous. So ma'am has told that talk positively, use positive affirmations before going on the stage, breath deeply or practice breathing exercise. She also told that how to present yourself on stage and what was the proportion of content, how much slides you should use, so that you can start with a story or the word imagination. So this was how the workshop has helped me. So that was a great learning actually. इतना सब तो I guess कोई competition सिखाता नहीं है, prepare नहीं करता है I guess, and then you finally go on to the final stage जहाँ पे everybody has prepared themselves through the single source of learning, right? So as a parent, सर आपको क्या लगता है कि श्रेया ने जो परफॉर्म किया है, क्या वो बाकी सारे पार्टिसिपेंट से बेस्ट था? ये जो पेरेंट्स तो हमारे बच्चे हमको अच्छा लगेगा, लेकिन सबके लिए यही मतलब सब लोग ने अच्छा किया। उसमें से जो जज को मतलब श्रेया का परफॉर्मेंस अच्छा आया, तो उसमें हम खुश हैं।
right. Of course, there were so many different topics. There were so many different participants जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपना content present किया था, different languages में participate किया था, right? So how did you choose your topic, Shreya? So my only motto was that I want to choose something that I could relate with the present situation. And talking about MSTA season 2.0, my topic was corruption. And I remember the day during 2020 when we all were sitting at home attending online classes. So what my father used to do, he used to give me topic each day that you write something, at least use your time productively. So during that day I took up a topic about corruption. So thinking about that, it has deeply impacted my life, because I heard cases where driving, but the inspector doesn't issue you a driving license just because of corruption. I think our country's youth should be aware about corruption. So I choose that. In season 3 I choose sustainability, because I think nowadays using resources effectively should be our motto. So this is how I chose my topic. That is something really different and helpful for our youth and audience as well. So did you find any challenges during finding the suitable content on your topic? The challenge was very big, because MST was a platform where you get an opportunity to choose any topic which you like, where someone tells you that you can choose any topic which you like. I think it's very difficult, because there are multiple topics. Maybe someone like technology, maybe someone like mythology, some like subjects matter, some like talking about self. But when I have to choose my topic, I asked my professors, multiple professors, mentors, my seniors, that please you suggest me topic. What if you got an opportunity, what you might spoke. So this is how I collected data, and at last I choose what I was confident at. True, that is true. And when you are talking about something you are confident on, वो दिल से निकलती है बात, and that delivers the best, right? So moving forward, मैम आप मुझे बताइए कि एज अ मदर आपने जैसे कि श्रेया ने तो अपना प्रेजेंटेशन कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए रिसर्च करना एंड बहुत सारी चीज़ें करी है, बट एज अ पेरेंट आपने उसको कैसे सपोर्ट किया? ने बोला मम्मी मुझे प्रिपेयर करना है, आप मेरे हेल्प करो। तो फिर बोला ठीक है। फिर आगे आगे धीरे धीरे अपने अपने वो पैराग्राफ बोलती गई, फिर हमने एडजस्ट किए। वैसे करते करते हमारा प्रिपेयर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर MST में वो आगे बढ़ी। सो मैम एज अ पेरेंट श्रेया जब फाइनली सीजन 3 में विनर बन के बाहर आई, तो आपको क्या लगा? उसके अंदर, उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर आपको कोई चेंजेस महसूस हुए, या फिर वो सेम श्रेया थी जो मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के पहले थी? मतलब इसको देख के इतना खुशी हुई कि वो स्टेज से जब नीचे उतरी, मम्मी मैं विनर ट्रॉफी जीत के आई हूँ। ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था उस टाइम, कि इतने सारे 15 स्टूडेंट्स के अंदर जो फर्स्ट हुई है श्रेया MST में 3.0 में। तो मैं क्या बोलूं आपको, मैं अपने वर्ड्स बोल नहीं सकती हूँ। श्रेया का बहुत बूस्ट हुई है, फियर भी रिड्यूस हो गया है। अभी वो कहीं पर भी जाकर अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकती है। MST ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वीक से वीक स्टूडेंट और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी पार्ट लेते हैं, और उसमें अपॉर्चुनिटी सब लेवल बराबर मिलता है। यहाँ पर कोई वो नहीं देखते, भेदभाव नहीं होता यहाँ पर। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर साल श्रेया को बोलती हूँ कि जब भी यहाँ पर पार्ट लो, मैं कभी ना नहीं करूँगी कि मत लो। यस, एंड आई बिलीव कि ये जो कंपटीशन है इस पे ज़्यादातर फोकस हमने यही किया है कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो ऑलराउंडर होते हैं, वो तो हर कंपटीशन में पार्ट लेते ही है, बट कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो आउट ऑफ सीन हो जाते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं और जिनको कहीं ऐसे मौका नहीं मिल रहा होता है। स्किल्स तो है बट बाहर नहीं आ रही है। ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करने की कोशिश करते हैं और उनके स्किल्स को हम
बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उनके हिडन टैलेंट को लाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर बच्चा इसका फायदा उठा सके और हर बच्चा आगे बढ़ सके। इसीलिए हमने लैंग्वेज का कोई ये इम्पोर्टेंस नहीं रखा है। बच्चा चाहे हिंदी में परफॉर्म कर रहा है, चाहे गुजराती में कर रहा है, चाहे इंग्लिश में कर रहा है, everybody is welcomed. So that was something really amazing thing about MSTA, I guess. So Shreya, you tell me कि what do you think कि MSTA ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है? MSTA has played a crucial role in shaping my personality, because after participating in MSTA season 2.0, I got an opportunity to participate in SSR Zest, where unfortunately I couldn't win, but I got that winning doesn't matter. After that, the golden opportunity for me was the Viksit Bharat Youth Parliament, and I cleared the district level because I was selected in top 10 out of 340 students. So it was a big opportunity for me, and getting to know that you are selected for a state level and you get an opportunity to visit Vidhan Sabha was which I never thought in my dreams, because it gives exposure to wide network of personalities. So this is how MSTA has played an important role in my life. Congratulations कि आप विधानसभा तक जाकर आए, एंड यू बिलीव के दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ MSTA. So thank you so much for that as well. And I would really congratulate you कि ऐसे और सारे एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहो, राइट? सो मैम एंड सर दोनों से आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ पेरेंट आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि 10th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, बोर्ड्स हैं, तो बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी सारी कॉम्पिटिशन्स तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? वो ये पेरेंट्स को यही बच्चे का पढ़ाई का साथ साथ में ये सब स्टेज में परफॉर्म करना, सब लोग के सामने बोलना, वो बड़ी बात है। जैसे हम आज दोनों बैठे हैं उनके श्रेया का साथ, श्रेया इतना बोल पा रहे, हम दोनों नहीं बोल पा रहे, उसका एक रीजन है, हमने कभी स्टेज में बोला ही नहीं। तो पहली बार हमने यहाँ पर आया, कैमरा के सामने कुछ बोल रहा है, मतलब हम सोच रहे हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन निकाल रहा है और कुछ, मतलब हम बोले नहीं पा रहे, उसका एक रीजन है। इसलिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, मतलब वो सोचे नहीं क्या जीतना हारना, लेकिन सबको उसमें पार्टिसिपेंट ले और बहुत कुछ सीख के जाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म में जो बहुत कुछ सिखाता है। थैंक यू MSTA टीम। That is true. This message is from my end as well कि nowadays हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज पे फोकस करते हैं, बट ये ज़माना डिग्रीज का अब नहीं रहा है। अब स्किल्स डेवलपमेंट पे उतना ही ज़्यादा फोकस ज़रूरी है जितना कि आपकी एग्ज़ाम्स और आपकी डिग्रीज इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों के स्किल्स पे, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपके ज़िंदगी के हर पड़ाव में आपको ये हेल्प करने वाला है, मरते दम तक। सो थैंक यू सो मच श्रेया फॉर शेयरिंग वंडरफुल जर्नी ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच सर एंड मैम कि आपने श्रेया को इतना मोटिवेट किया, उसको आगे पुश किया पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स कि अगर आपको श्रेया की तरह विधानसभा तक जाना है, अगर आपको श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, तो शुरुआत यहाँ से करिए। मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड आपको ये प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाओगे, और क्या पता कल हम आपकी स्टोरी यहाँ पर शेयर करेंगे। सो दिस वाज बुशरा नथानी साइनिंग ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।